OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. In the last class, हम लोगों ने पढ़ा था how to find the derivatives of some standard results. We use the concept differentiation from first principle. And then उसके बाद हम लोगों ने कुछ concept सीखे थे algebra of differentiation के अंडर में means how to find the derivative of sum of two functions, product of two functions, difference of two function and quotient of two function. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ y is equal to x to power 4 plus x square plus 1 upon x square plus x plus 1, find dy by dx. Find dy by dx. How will you solve this question? जैसे ही आपसे पूछा आपको क्या क्लिक करेगा? Yes, we will apply u by v rule. How will you find the derivative of u by v? This is known as quotient rule. What is quotient rule? In last class we have discussed this one. V square in denominator you will write v into derivative of numerator means u minus u into derivative of v means denominator. This is quotient rule. तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखा यू स्टार्टेड आपने इमीडिएट क्या कर दिया, क्वेश्चन रूल लगा दिया. दिस इज यू, दिस इज वी. बट कोशिश कीजिए कि जितना पॉसिबल हो क्वेश्चन रूल से बचा जाए. मीन्स इफ इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, फर्स्ट सिंप्लीफाई, देन आफ्टर दैट यू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन. उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद स्टिल अगर ये हमारा u बाई वी फॉर्म में आ रहा है देन वी विल अप्लाई u बाई वी रूल. अगर हो सकता है ये सिंप्लीफाई हो करके एक सिंगल सा फंक्शन बच जाए तो नो नीड टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल या प्रोडक्ट रूल. चलिए, इन द लोअर क्लास 9th में आपने इसको फैक्टराइज करना सीखा होगा. हाउ विल यू फैक्टराइज x टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. रिकॉल कीजिए कैसे फैक्टराइज किया है. x टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अगर हमने लिख दिया, इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर आई हैव रिटन हियर 2x स्क्वायर. तो बैलेंस करने के लिए आपको x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये क्लिक किया, ऐसा हमने क्यों लिखा? दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1. चेक, ये सही है. x टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. Now you can apply here a square minus b square. So what is the formula for a square minus b square? X square plus 1 plus x and x square plus 1 minus x, and denominator is x square plus x plus 1. These two brackets are same, cancel out हो गया. Therefore what is y? Simplify हो गया, x square minus x plus 1. Now you can write derivative in one line. तो हमें u by v यानी quotient rule लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. What is derivative? dy by dx is equal to, what is the derivative of x square? Derivative of x square minus derivative of x plus derivative of 1. 1 is constant. Constant का derivative you know it's 0. x का derivative with respect to x is 1 and x square का derivative 2x. Therefore the final answer is 2x minus 1. This is the answer. आई होप आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट. चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कट कीजिए, इसी में ही लिखेंगे दूसरा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y is equal to x cube plus x square plus x divided by 1 plus x square, find dy by dx. तो अगेन आप क्या कहेंगे कि u by v रूल लगाएं. तो आपसे कहा कि इफ इट इज पॉसिबल टू सिंप्लीफाई, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन अप्लाई एनी रूल, जो भी उस समय जो भी लगे वो रूल आप अप्लाई करेंगे. तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यू कैन से कि डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. डिवाइड एक्चुअल डिवीजन भी आप परफॉर्म कर सकते हो. तो ये आइडिया गलत नहीं है कि वी कैन अप्लाई एक्चुअल डिवीजन, बट कोई और तरीका है. इज देयर एनी अदर वे? rearrange the terms. We are taking x cube plus x together, x cube plus x, और x square को अलग कर दिया. Denominator is 1 upon 1 plus x square.
denominator is 1 plus x square. Now take x common, you will get here x square plus 1 plus x square upon 1 plus x square. Now divide the two terms separately, x into 1 plus x square upon 1 plus x square plus x square upon 1 plus x square. यहाँ तो 1 plus x square कैंसिल हो गया. अब यहाँ क्या करेंगे आप, add 1 and subtract 1, add 1 and subtract 1. अब क्या मिलेगा अपने को, अब फिर से यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कीजिए. दिस इज x ओनली, 1 plus x square upon 1 plus x square and this is minus 1 upon 1 plus x square. तो ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, x plus 1 minus 1 upon 1 plus x square. दिस इज द y. अब इसको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट नहीं है. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx, what is the derivative of x? It's a 1 and derivative of constant, it's a 0. अब यहां पे आप चाहे तो u by v रूल अप्लाई कीजिए. u is 1, v is 1 plus x square. What is quotient rule? In denominator you will write v square, in denominator you will write 1 plus x square whole square. Now v means denominator into derivative of numerator, numerator is constant, minus numerator into derivative of denominator which is 1 plus x square. 1, what is the derivative of 1? It's a 0. तो प्रोडक्ट 1 plus x square into 0, ये पूरा ही 0 आ गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ x square it's a 2x upon 1 plus x square whole square. The last step is क्या आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, ये 2x माइनस माइनस 1 plus 2x upon 1 plus x square whole square. This is the answer. आई होप आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट. तो क्वोशिएंट रूल से तब तक बचिए जब तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप. सिंप्लीफाई जब करना, अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, देन अप्लाई द क्वोशिएंट रूल. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन in the topic, in the chapter composite, in the chapter function हम लोगों ने सीखा था what is composite function. What is the meaning of composite function? Composite function is function of function. What is the composite function? It's a function of function. देखिए आप, जनरली हम कहते हैं y is equal to fx. We show the function y is equal to fx. We say y is the function of x. x is some independent variable. x की वैल्यू हम अपने से सेलेक्ट करके y निकालते हैं. x is a single variable. उसकी वैल्यू हम 1 2 3 1/2 1/3 कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. इट्स अ वेरिएबल और उसकी वैल्यू सेलेक्ट करते हुए हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं. x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल. तो y इज फंक्शन ऑफ x, इसको रीड करते हैं y इज फंक्शन ऑफ x. इंस्टेड ऑफ x अगर हम कोई दूसरा फंक्शन ले लें, x का ही दूसरा फंक्शन ले लें, से gx, तो y इज f ऑफ gx. y is function of gx and gx is itself a function. This is said to be composite function. तो अगर हमें composite function का डेरिवेटिव करना है तो how will you find the derivative of composite function? तो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर टेकिंग एग्जांपल. इफ y is composite function, y is 2x minus 1 whole square, y is 2x minus 1 whole square, find dy by dx. You know the derivative of x square, it's a 2x. क्या 2x minus 1 का होल स्क्वायर अगर है तो उसको डेरिवेटिव कर पाएंगे? तो इसको डेरिवेटिव के लिए पहले हमें फर्स्ट एक्सपेंड द परफेक्ट स्क्वायर. 4x square minus 4x plus 1. Now we can differentiate term by term. This is y, differentiate with respect to y, differentiate with respect to x.
तो इट्स 4 into डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 into डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इट्स 2x, 4 into 2x माइनस 4 into x का डेरिवेटिव एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. यू कैन टेक 4 कॉमन, 4x 4 into 2x minus 4, we can take 4 common, 2x minus 1. This is the answer. अब देखिए जो हमारा डेरिवेटिव फाइंड करना था तो फंक्शन क्या था, 2x minus 1 whole square. Now result is 4 into 2x minus 1. और ज्यादा समझने से पहले एक और एग्जांपल ले रहे हैं. वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल. इफ y is x plus 1 whole cube, find dy by dx. So again first expand the bracket. So x plus 1 whole cube, it's a x cube plus 3 into x square plus 3 into x plus 1. You know the expansion of a plus b whole cube, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Now differentiate term by term with respect to x. dy by dx is 3x square प्लस 6x. अब तो डायरेक्टली लिख रहे हैं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x into 3 6x and 3 into derivative of x which is 1. 3 into 1 means 3 and 1 का डेरिवेटिव 0. What is common? 3 we can take common, you will get x square plus 2x plus 1 which is perfect square. किसका perfect square है? It's a perfect square of x plus 1. What is dy by dx? 3 into x plus 1 whole square. मीन्स यहां पे भी x प्लस 1 क्यूब था, यू आर गेटिंग हियर x प्लस 1 स्क्वायर. यहां 2x माइनस 1 स्क्वायर था, यू आर गेटिंग 2x माइनस 1 होल टू पावर 1 एंड सम कोफिशिएंट आ रहा है, यहां पे 4 आ रहा है, यहां पे 3 आ रहा है. तो अब हम समझ सकते हैं, कुछ कंसेप्ट से हमें आइडिया लगा कि अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें x प्लस 1 या x प्लस 4 होल टू पावर 4, तो सम कांस्टेंट के बाद x प्लस 4 का क्यूब जरूर मिलेगा. सी द कॉन्सेप्ट. यहां 2 पावर थी तो 1 पावर मिली, मींस एक पावर कम होके मिली. यहां 3 पावर थी तो 2 पावर मिली. इफ हियर इज x plus 4 whole to power 4, you will get whole cube of the same bracket, but कुछ कोफिशिएंट आएगा. we have to find what is the coefficient. इस कोफिशिएंट की वैल्यू यहां 4 थी, यहां 3 थी. what will be here? तो यही कॉन्सेप्ट हमें सीखना है इन द आर्टिकल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन मींस फंक्शन ऑफ फंक्शन. तो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of gx. f is a function and it is a function of another function g. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आया. लेट y is equal to f of gx. we have given a composite function f of gx. f is a function of g and g is a function of x. Function of function, this is said to be composite function. So if we have to find the derivative, means we have to differentiate y with respect to x, and now f is not the function of x, f is a function of gx. जब हमारा f फंक्शन होता था x का, then we differentiate y with respect to x. Now y is function of f and f is the function of g and g is the function of x. तो कंपोजिट फंक्शन को एक सिंपल सा फंक्शन बनाना चाहते हैं हम लोग. gx x वेरिएबल है तो gx इज आल्सो वेरिएबल. तो लेट gx को हमने कुछ नेमिंग कर दी. लेट gx इज u. लेट gx इज u. देयरफॉर व्हाट इज y नाउ? y is f of u. Now y is the simple function of f. y is a function of u and u is a variable. जब y फंक्शन होता है x का तो we differentiate with respect to x. Now y is a function of u. You will differentiate with respect to u. Differentiating with respect to u. So it's a dy by du and it is f के डेरिवेटिव को f dash लिखते हैं. It's f dash u. So this is not answer. We have to find dy by dx. हमें क्या फाइंड करना है? dy by dx. But this is dy by du. तो अभी आप ये नहीं कहेंगे कि this is the answer because you have, you हम लोग ने लिया है because
we can't say this is the final derivative because we have selected u. u given नहीं था क्वेश्चन में. तो what is u actually? u क्या है? u is a function of x. u is gx. तो जैसे हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स होता था उसी तरह y की जगह क्या है? u. u इज फंक्शन ऑफ g. तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x बिकॉज नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ x. तो dy बाई dx के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे? du बाई dx इक्वल टू g डैश x. एंड ये भी हमें नहीं फाइंड करना है बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy बाई dx एंड दिस इज du बाई dx. तो विद द रिजल्ट ऑफ 2 and 1 can we find dy by dx? चेक करते हैं. We have to find dy by dx and this is dy by du, this is du by dx. Can we say dy by dx is the product of dy by du and du by dx? चेक कीजिए. Is it correct? du cancel होगा. This is dy by dx. Yes. तो dy by dx is the product of dy by du and du by dx. So put the values of dy by du. It is f dash u. And what is the value of du by dx? It's a g dash x. But u हमने खुद से कंसीडर किया है. Again we will put the value of u. What is u? g of x. f dash of gx into g dash x. This is the derivative. And this derivative of composite function means derivative of function. This is said to be chain rule. इसी को ही कहते हैं हम लोग chain rule. कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में? फर्स्ट हम लोग कंसेप्चुअली चलेंगे, देन वी कैन यूज डायरेक्टली दिस रिजल्ट. तो वही तीन एग्जांपल जो हम लोग ने देखे हैं, फर्स्ट हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, देन जो कंसेप्ट डिराइव हो रहा होगा वी विल यूज डायरेक्टली द कंसेप्ट इन द क्वेश्चन. चलिए सेम एग्जांपल ले रहे हैं. क्या लिया था हम लोगों ने? फर्स्ट, इफ y इज 2x minus 1 होल स्क्वायर फाइंड dy by dx. ये था हमारा एग्जांपल. फर्स्ट फाइंड dy by dx. व्हाट इज y? 2x minus 1 whole square. तो let what is gx actually here? gx is 2x minus 1. तो let 2x minus 1 equal to u. now अगर हमने 2x minus 1 को u कह दिया, now what is y? y is u square. तो y is a function of u. जिस तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आप डेरिवेटिव करते हो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x. सिमिलरली y इज द फंक्शन ऑफ u. नाउ y इज u स्क्वायर. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, दिस गिव्स dy by du. क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? 2u. dy by du is 2u. Now, what is u here? But u is, what is u? 2x minus 1. Now, this is the u is the function of x. u function है x का. Differentiate कीजिए with respect to x. Differentiating with respect to x. You will get here du by dx. y के place पे u है. जब y होता है तो you write dy by dx. Here u is given. You will write here du by dx. What is the derivative of 2x? 2 into 1 and 1 का derivative 0. What is the derivative of u with respect to x? It's a 2. Therefore, अब हम लिखेंगे dy by dx, which is the product of dy by du. अभी हम लोगों ने यहाँ देखा dy by dx is the product of dy by du and du by dx. dy by du is 2u and du by dx is 2. This is 4u. This is 4 and this is u. Put the value of u. What is u? u is 2x minus 1. चेक कीजिए, यही आंसर भी आया था जब हमने एक्सपेंड करके किया था. वी गॉट द सेम आंसर. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं. जो हम लोग ने किया था वही एग्जांपल फिर से कर रहे हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. The next is वही क्वेश्चन जो हमने लिया था. नेक्स्ट वाज y इक्वल टू x प्लस 1 होल क्यूब. तो बाय द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो फर्स्ट वी विल कंसीडर लेट
x प्लस वन को हमने क्या मान लिया, u. Therefore, what is y now? It's a u cube. Y is the function of u and it's a u cube. Therefore, dy by du means we are differentiating with respect to u. Dy by du. What is the derivative of u cube with respect to u? 3u square. But what is u? u क्या है हमारा? u is x plus 1. u is the function of x. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. तो du by dx, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0. What is du by dx? It's a 1. But we have to find dy by dx. हमें फाइंड क्या करना था? dy by dx फाइंड करना था. तो dy by dx is product of dy by du and du by dx. What is dy by du? dy by du is 3u square and du by dx is 1. 3u square. Bas, last step, put the value of u. What is u? X plus 1. 3 into u square means x plus 1 whole square. चेक कीजिए, यही था आंसर. नाउ नो नीड कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करें, बट इन बोर्ड एग्जाम यू हैव टू, आपको इसी तरह से ही सॉल्व करना है. फॉर द बोर्ड पर्पस यू हैव टू यूज द सेम कॉन्सेप्ट. बट अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस से हम सॉल्व करना चाहें, यू कैन रिड्यूस द टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली हमारे पास क्या रिजल्ट था? इफ, रिजल्ट को ध्यान दीजिए, इफ y इज कंपोजिट फंक्शन मींस y इज f ऑफ gx. तो क्या डायरेक्टली रिजल्ट आया था dy by dx? याद है dy by dx आया था. देखिए gx को पहले u कंसीडर कीजिए, डायरेक्टली रिजल्ट समझिए कैसे. gx को u कंसीडर कीजिए तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव f ऑफ u बन गया डेरिवेटिव f डैश u. बट u जो कंसीडर किया है gx, राइट द gx, u नहीं लिखिए, डायरेक्ट gx ही लिखिए. तो फॉर अ मोमेंट gx को u कंसीडर कीजिए, fu का डेरिवेटिव f डैश u और u की इमीडिएट वैल्यू पुट कर दी g डैश gx. एंड लास्ट में हम लोगों ने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ gx व्हिच इज g डैश x. तो ये हमारा डायरेक्टली वी कैन अप्लाई द चेन रूल. इन्हीं क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. अगेन फिर से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. y इज 2x माइनस 1 होल स्क्वायर. तो 2x माइनस 1 को हमने क्या कंसीडर किया? u. तो y इज इक्वल टू u स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे डेरिवेटिव डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे. तो dy बाई dx कंसीडर 2x माइनस 1 u. तो u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u. अगर इसको हमने u माना, दिस इज u स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर इज 2u. और u किसको लिया था? इमीडिएट वैल्यू लिख दीजिए 2x माइनस 1 और u का ही डेरिवेटिव इनटू कर दीजिए. डेरिवेटिव ऑफ gx या डेरिवेटिव ऑफ u इनटू कर देंगे आप 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव, बिकॉज u या gx क्या है? 2x माइनस 1. तो 2 इंटू 2x माइनस 1, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का 0. 2 2 जा 4 इंटू 2x माइनस 1. चेक कितनी इजीली आ गया. सेम आंसर वी आर गेटिंग. इसी तरीके से इस वाले एग्जांपल को देखिए. व्हाट इज y? सेकंड एग्जांपल, y इज x प्लस 1 होल क्यूब. तो फॉर अ मोमेंट x प्लस 1 को u कंसीडर कीजिए. तो y इज u क्यूब. अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएट डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में करना है, u के रिस्पेक्ट में नहीं. तो फॉर अ मोमेंट कंसीडर x प्लस 1 एज अ u. दिस इज u क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ u क्यूब इज 3u स्क्वायर. बट आप u नहीं लिखिए. व्हाट इज u? इट्स x प्लस 1. 3u स्क्वायर मींस 3 ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. u किसको माना है? x प्लस 1 को. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x? 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 0. 1 प्लस 0, तो इस पूरे का ही डेरिवेटिव 1 आ गया. तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. चेक कीजिए, सेम आंसर आ रहा है. तो एक और एग्जांपल जिसका अभी तक हम लोगों ने डेरिवेटिव नहीं लिखा था, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल टू पावर 4. तो डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, चेन रूल. दिस इज नोन एज चेन रूल. डायरेक्टली चेन रूल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. फॉर अ मोमेंट कंसीडर दिस u. तो u टू पावर 4 का डेरिवेटिव, u टू पावर 4, 4u क्यूब. बट u क्या है हमारा? x प्लस 4, 4u क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. व्हाट इज u? x प्लस 4. तो x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0. इसका डेरिवेटिव x प्लस 4 का डेरिवेटिव हो गया 1. तो फाइनल आंसर इज 4 इंटू 1 मीन्स 4 इंटू एक्स प्लस 4 होल क्यूब. ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 4 होल टू पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू x.
तो आई होप आपको कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एग्जाम में हम लोग जनरली जब आता है क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो पूरे कंसेप्चुअली करते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में आप ये कंसेप्ट यूज कीजिए, एंड फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही कंसेप्ट यूज करेंगे आप। इफ इट इज आस्क्ड इन 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ही, तो यू कैन डायरेक्टली यूज, बट अगर ये 3 या 4 मार्क्स का है देन आपको इस कंसेप्ट से करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, हाउ टू डिफरेंशिएट द फंक्शन विच इज अगेन अ function of some another function. So in the next class we will continue the same concept. Till then, bye bye, take care.